A very big hello to all my students. I am here with the solutions of ANTS PT4 with the botany part solutions. Let's start without wasting time. Section A. Meiosis. What is meiosis known as? Meiosis is known as reductional division. What does reductional division mean? The mother cell, that is the myocyte, which is diploid, undergoes meiosis, produces 4 daughter cells with half the set of chromosome number. Let's talk about that. Has evolutionarily significance because it results in genetically similar daughter cells. Genetically, are these similar daughter cells? No, these are different from the mother. 4 daughter cells, yes, this is right, but this has nothing to do with the evolution part of it. Eggs and sperms are formed because of meiosis. Again, evolution में इसका कोई ज़्यादा role नहीं है. What is the role of this in evolution? Recombination. मतलब क्या हुआ? हमारे पास में दोनों का fusion हुआ. Fusion होने से क्या हुआ? हमारे पास में क्रॉसिंग ओवर से क्या हुआ? रिकॉम्बिनेशन से वेरिएशन. तो एवोल्यूशन इज बिकॉज ऑफ दैट. सो कॉज ऑफ वेरिएशन इज रिकॉम्बिनेशन दैट लीड्स टू एवोल्यूशन. देयरफॉर द आंसर फॉर 101 हैपेंस टू बी द डी ऑप्शन. 102. सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड. तो सेल्स जब डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है? इंटरफेस में. इंटरफेस इज व्हाट? दैट इज नोन एज व्हाट? प्रिपेटरी फेस, रेस्टिंग फेस. लेट्स टॉक अबाउट दैट. एग्जिट बाहर निकल गया. G1 फेस टू एन इनएक्टिव स्टेज. इनएक्टिव को क्या वर्ड लिखा है बुक ने? नो प्रोलिफरेशन. प्रोलिफरेट नहीं कर रहा है. Called what? Is that known as G2 phase? No. Is that known as G0 phase? Yes. The inactive stage out here is known as G0 phase where metabolism is there but less metabolism है. और ये क्या कर रहा है? Exit कर लिया G1 से. तो this is it. It's also known as what? Quiescent stage. What is this known as? Quiescent stage. Therefore, the answer for 102 happens to be the B option. 103. Chromosomal material becomes dash in the process of chromatin condensation. क्रोमेटिन कंडेंसेशन कब हो रहा है हमारे पास में? जब ये सेल डिवीजन में जाता है. सेल डिवीजन में कहाँ पे? प्रोफेस में हो रहा है. तो प्रोफेस में क्रोमेटिन कंडेंसेशन हो रहा है. बट उससे पहले क्या था? ये इससे पहले हमारे पास क्या था? इंटरफेस. वहाँ पे हमारे पास जो है डीएनए जो है टैंगल्ड था. टैंगल मतलब ये सब ऐसे है. व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल्सो नोन एज इंटरविंड. अब जैसे जैसे मैं आगे जा रही हूँ क्रोमोसोम्स आर विजिबल. क्रोमोसोम कब विजिबल होंगे? जब ये प्रॉपर अरेंजमेंट में होगा. दैट मीन्स व्हाट? अनटैंगल्ड हो गया. तो क्रोमेटिन कंडेंसेशन occurs. Because of that they become untangled. Now it is known as what? Chromosomes. The answer for 103 happens to be the A option. And where you have that? प्रोफेस के अंदर में. Okay. 104. The period in which the major reorganization, everything is properly arranged out here, reorganized out here, virtually of all the components, जितना है cell organelles, everything out here, occurs in which phase? A is prophase. Is that prophase? No. M phase? Yes. Because you are going to have everything reorganized, तभी M phase को हम लोग क्या बोलते हैं? Most dramatic phase. क्या इसको बोलते हैं? ड्रामा करने वाला फेस. मोस्ट ड्रामेटिक फेज इज द एम फेज. वाई अगर पूछा तो आंसर इज बीन गिवन. रीजनिंग एंड असर्शन में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. द आंसर फॉर दिस हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन. Meiosis 1. I hope everybody is aware. Meiosis में Meiosis 1 है, Meiosis 2 है. Meiosis 1 में क्या होता है? Meiosis 2 में क्या होता है? Meiosis 2 is a copy of mitosis. तो Meiosis 1 is the असली reductional division, whereas Meiosis 2 is known as the equational division. Let's talk about that. Meiosis 1 is always followed by interphase. So let's talk about that. ये तो क्वेश्चन ही कुछ और पूछा. हमारे पास में पहले इंटरफेस होता है. इंटरफेस इज द प्रिपेटरी फेस. अब जाके क्या करता है ये? Meiosis 1. फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है? Meiosis 2. एंड उसके बाद साइकिल में जाओ तो अगेन इंटरफेस. बट Does it have any resting period between meiosis 1 and meiosis 2? Yes, होता है. Can I call that resting phase to be interphase? No. उसको क्या मैं बोलूँगी? Interkinesis. क्या बोलूँगी?
इंटरकाइनेसिस। तो इंटरकाइनेसिस, हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम इंटरफेस? सब कुछ हो रहा है बट डीएनए डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है। सो लेट्स गो फॉर द आंसर्स। इज ऑलवेज फॉलोड बाय इंटरफेस? नो। ये इंटरफेस कब हो रहा है? आफ्टर मियोसिस 2, सो दिस इज रॉन्ग। इज नॉट फॉलोड बाय एनी पीरियड ऑफ रेस्ट? नो, मैंने बोला इज फॉलोड बाय पीरियड ऑफ रेस्ट, बस उस पीरियड ऑफ रेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। is followed by a period of interkinesis, so that is the right option for that. is sometimes followed by the interphase? No, interphase तो हो ही नहीं रहा है but interkinesis, but कैसे वो interkinesis और ये different है? यहाँ पे DNA duplication नहीं हो रहा है, interphase में DNA duplication था in the S phase of it. Therefore the answer for this question happens to be the C option. 106. The duplication occurs in S phase and has, अच्छा S phase याद करो, सिंथेटिक फेज, दो चीज का मैंने सिखाया था। क्या हो रहा है यहाँ पे? डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा, और किसका? कौन सा ऑर्गेनल का? सेंट्रियोल। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। दैट मीन दोनों में से एक ऑप्शन होना पड़ेगा। एस फेज में डुप्लीकेशन हो रहा है एंड हैज स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। ऑपोजिट पोल में जा रहा है तो डीएनए तो जाता नहीं है, माइग्रेशन होता है बाद में वो क्रोमोसोम का, बट ऑपोजिट पोल्स में जाता है इन द प्रोफेज। ठीक है ना? प्रोफेज में जा रहा है हमारे पास ऑपोजिट पोल में कौन? द सेंट्रियोल आउट हियर, अगर सेंट्रियोल नहीं तो सेंट्रोसोम आउट हियर। We are talking about which component? Is this DNA? No. Is it microbodies? No. Nuclear envelope? No. तो काट के किसको जा रहे हैं? Centriole. So centriole moves to the opposite pole. तो क्या बनाता है बाद में? Ester. Ester क्या बनाता है? Obviously spindle fibers out here. The answer for 106 happens to be the C option. 107. Bivalent chromosomes clearly appear as tetrads. सबसे पहले bivalent होता क्या है? Bivalent is, this is a chromosome, ये इसका homologous chromosome है. That means this is the paternal chromosome, this is the maternal chromosome. ये pairing किया है, तो what is this known as? Bivalence. ठीक है ना? ये bivalent बनता कब है? In the zygote stage. जब bivalent बना है तो वो क्या बन जाता है? Tetrad. Bivalent means is a word used for the chromosome, homologous chromosome. Tetrad is the word used for what? The 4 chromatids out here. 1 chromatid, 2 chromatid, 3 chromatid, 4. So this is formed when? NCERT says that it is formed during the zygote stage. But हमने क्या पूछा यहाँ पर? Clearly visible, clearly appears during what? It is clearly appearing in the Peckytin stage. अब ये ready हो गया किस चीज के लिए? Ready हो गया for crossing over. तो ये and एक और चीज हमने क्या पढ़ा? Clear cut demarcation does not occur between the different stages, but the word clearly is mentioned in the books, so we are supposed to read that carefully. The answer for 107 happens to be the B option. 108. Through the nuclear pore, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे मेरे पास क्या है? न्यूक्लियर पोर्स है। ये न्यूक्लियर पोर से क्या हो रहा है? सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर मेरे पास क्या है? डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है। Does the DNA move out of the nuclear membrane or out of the nucleus? No. कौन जाता है? RNA जाता है, हम सबको पता है, हमारे पास mRNA, tRNA बाहर में हमको चाहिए, तो RNA moves out here and the protein moves out here. तो मेरे पास कौन मूवमेंट दिखाता है? तो DNA वाला तो कैंसिल, DNA वाला तो कैंसिल, RNA ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इज नॉट मेंशन एज सच। तो किसका मूवमेंट हुआ यहाँ पे? RNA and the proteins move through this nuclear pore. कहाँ से? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ने न्यूक्लियस के अंदर भी आ जाता है। कौन? प्रोटीन्स आउट हियर। सो आंसर फॉर 108 हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन। 109. Which of the following is true about the cell wall except, इसको नोटिस करना है, cell wall is a feature of the plant cells. The first option out here is determines the shape of the cell. ऑब्वियसली एक सेल की वॉल नहीं है तो शेप डिटरमाइन नहीं होगी। जैसे अगर मैं इस रूम की भी बात करूं, अगर वॉल नहीं है तो शेप नहीं है। सो दिस इज ट्रू। प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। बस्ट कब होता है? टर्जिडिटी दिखाने के टाइम। और कोलैप्सिंग कब होता है? जब श्रिंकेज होता है। बट डू वी हैव कोलैप्सिंग और श्रिंकेज और टर्जिडिटी और बस्टिंग आउट हियर? टर्जिडिटी होने से भी, पानी अंदर आने से भी टर्जिडिटी बढ़ रही है,
बट ये बस्ट नहीं होता है। पर अगर वो एनिमल सेल होता तो बस्ट हो जाता, और अगर एनिमल सेल होता श्रिंक करके तो वो कोलैप्स भी होता है। प्लांट सेल्स के अंदर हमारे पास क्या है, सेल वॉल है, ये ऑपोजिट एंड इक्वल प्रेशर देता है, किसको, टर्गर प्रेशर को, वॉल प्रेशर। सो वी आर नॉट गोइंग टू हैव व्हाट, बस्टिंग और कोलैप्सिंग इन केस ऑफ द प्लांट सेल्स, क्योंकि वॉल प्रेशर इज बीन डेवलप्ड बाय दैट। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सिलेक्टिवली परमेबल इन नेचर, सिलेक्टिव वर्ड ही हमारे पास किसके लिए आता है, सेल मेम्ब्रेन के लिए। सेल वॉल इज परमेबल, इट्स नॉट सिलेक्टिवली परमेबल, सो दिस इज रॉन्ग। रॉन्ग मतलब ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेट्स रीड द लास्ट पॉइंट ऑल्सो। प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यस ऑब्वियसली सपोर्ट देगा ही, वह बाहर की वॉल है, तो आंसर फॉर 109 हैपन्स टू बी द सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 110 माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स। चलो देखो, ये मेरे पास एक सेल है, यहाँ पर है, यहाँ पे मेरे पास में क्या है, क्रोमोसोम्स है, यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। ठीक है, अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम बन गया है, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम मेरे पास पहुँच गया है, यहाँ पर ये पहुँच चुका है, ऑपोजिट पोल में चला गया। अभी क्वेश्चन का आंसर था, इस जो सेंट्रोसोम है ये सेंट्रियोल है, यहाँ से हमारे पास ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है अराइज करते हैं। अब ये जब माइक्रोट्यूब्यूल्स अराइज कर लिए, अब ये कैसे लग रहा है, इट्स लुकिंग मच लाइक अ सेल, सॉरी मच लाइक अ सन। सन को हम लोग और क्या बोलते हैं, स्टार। व्हाट इज दैट नोन एज, एस्टर। सो व्हाट इज एस्टर आउट हियर, एस्टर इज, मेरे पास किसको बोल दिया मैंने, एस्टर इज द सेंट्रियोल प्लस दिस माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बन गया है उसको मैं एस्टर बोलती हूँ। ठीक है, कहाँ बना, बोथ साइड्स में, यहाँ पर, और ये कहाँ पे अटैच होता है, ये आके इसको अटैच करता है ना। तो लेट्स रीड अबाउट द ऑप्शंस आउट हियर। कहाँ पे अटैच करता है, काइनेटोकोर को। माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम ऑपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये होमोलोगस क्रोमोसोम को अटैच कर रहा है, कहाँ पे अटैच करा, ड्यूरिंग व्हाट, पेकाइटिन में, कि मेटाफेज 1 कि मेटाफेज 2। ये अब ये अटैच करता तो हम सबको याद है मेटाफेज में करता है, बट 1 और 2 तो कैसे याद रखना है, अगर मेरे पास वर्ड होमोलोगस आया तो आंसर इज 1, अगर सिर्फ क्रोमोसोम्स आया तो आंसर इज 2। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन। मैंने आपको एस्टर भी बता दिया, एक क्वेश्चन में एस्टर भी है, तो यू कैन अंडरस्टैंड देयर ऑल्सो। अब बाइवेलेंट कंसिस्ट ऑफ, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन, बाइवेलेंट बनता कब है, इन केस ऑफ द जाइगोटिन, क्लियरली विजिबल कब होता है, इन केस ऑफ पेकाइटिन। तो आई एम रीड्राइंग दैट डायग्राम, ये बाइवेलेंट है, दैट मीन्स साइनेप्सिस और पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। लुक एट दिस। अब इट कंसिस्ट ऑफ कितना क्रोमेटिड्स, एक, दिस इज 1 क्रोमेटिड, दिस इज 1 क्रोमेटिड, 2, दिस इज 3rd क्रोमेटिड, दिस इज 4। हाउ मेनी क्रोमेटिड्स आउट हियर, तो 2 कैंसिल, कितने क्रोमेटिड, ये भी राइट है, ये भी राइट। आगे देखते हैं, हाउ मेनी सेंट्रोमियर्स, एक सेंट्रोमियर में 2 क्रोमेटिड लगता है, तो हाउ मेनी सेंट्रोमियर्स आउट हियर, 2 सेंट्रोमियर, दिस इज रॉन्ग। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन। मुझको बताओ हमारे पास कितने बाइवेलेंट्स हैं। If you are listening to this, if you are watching the video, tell me how many bivalents are seen is in a human being का diploid cell. ठीक है, चलिए 112. The cell division is a progressive process. Yes, it's a progressive process. आगे होता चल रहा है, कुछ ना कुछ changes आ रही है. A very clear cut lines cannot be drawn. अभी मैंने आपको बताया clear cut lines नहीं है, तभी हमने word पढ़ा clearly वहाँ पे बन रहा, but बन यहाँ पे भी रहा है. So that is again true. Clear cut demarcation between all the phases. Obviously इसका उल्टा है, तो this is not true. ये दोनों के दोनों true है. The answer for this happens to be the D option, both A and B. तो D option. 113. Liquid endosperm in coconut is. लिक्विड एंडोस्पर्म को कोकोनट मिल्क भी बोलते हैं, उसका नाम क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. तो आगे पढ़ते हैं, वो कैसे हुआ मेरे पास, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. ये मेरे पास एक सेल है, एंडोस्पर्म बनाने लगी हूँ, ये न्यूक्लियस है, इसने 2 में डिवाइड किया और इसने सेल बना दिया, तो यहाँ पे तो सेलुलर बन गया. तो ये लिक्विड एंडोस्पर्म का नाम ही क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. ठीक है, सो दिस इज नॉट ट्रू. फेलियर ऑफ द कैरियोकाइनेसिस एंड द साइटोकाइनेसिस, ये बोलता है कैरियोकाइनेसिस भी नहीं हुआ. अगर कैरियोकाइनेसिस नहीं हुआ तो फ्री न्यूक्लियर कैसे बना, सो दिस इज आल्सो नॉट ट्रू. कैरियोकाइनेसिस ट्वाइस फॉलोड बाय व्हाट, सिंगल साइटोकाइनेसिस, मैंने 2 बार कैरियोकाइनेसिस किया, एक साइटोकाइनेसिस 2 बार किया, ऐसा भी नहीं है.
कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। यस, ये लिया मैंने, इसको दो बार नहीं, एक बार किया कैरियोकाइनेसिस, फिर से किया कैरियोकाइनेसिस, फिर से किया कैरियोकाइनेसिस, एंड दिस इज फिल्ड अप विद न्यूक्लियस न्यूक्लियस न्यूक्लियस, नो साइटोकाइनेसिस आउट हियर। इसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर। और क्या है वर्ड? सिंसिशियम। दैट मीन्स हमारे पास में न्यूक्लियस 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 एंड नो साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज भी बनती है। तो आंसर फॉर दिस हैपेंस टू बी द डी ऑप्शन। हार्मोन कौन सा इसके अंदर? साइटोकाइनिन। ओके। 114, विच द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द न्यूक्लियोलस। ये देखो, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन है, यहाँ पे मेरे पास क्रोमोसोम है या क्रोमेटिड है, यहाँ पे मेरे पास कुछ है। What is this? This is known as nucleolus. This is membraneless structure. Yes, तभी बोला है बुक में this is continuous with the nucleoplasm. तो which is correct line? It is known to synthesize something. What is that known to synthesize? rRNA. ये क्या synthesize करता है? rRNA synthesize करता है. That is why rRNA कहाँ बना? अंदर बना. तो बाद में जब हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो RNA बाहर जाएगा ना. So this is correct. Larger and more numerous. माने न्यूक्लियोलस नॉर्मली कितना होता है? एक, बट कभी कभी बड़ा वाला और ज्यादा इन नंबर इज सीन इन द सेल्स विच आर एक्टिवली इन्वॉल्व किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस। अभी हमने बोला आरआरएनए बनेगा तो व्हाट इज राइबोसोम मेड अप ऑफ? इट्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड आरआरएनए, तो राइबोसोम बनेगा, हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस होगा, तो ऑब्वियसली ये किसमें इन्वॉल्व है? इसके अंदर। सो दिस इज ऑल द थ्री आर करेक्ट। द आंसर फॉर दिस हैपेंस टू बी द डी ऑप्शन। Next, 115. Which of the following is false? The mitotic spindle is composed of microtubules. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था mitotic spindles के बारे में, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। ये मेरे पास में एक सेल है, ये मेरे पास में क्या है? यहाँ पर सेंट्रियोल बोलो या सेंट्रोजोम बोलो, यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स आया, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जब बन गया यहाँ से, अब ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एस्टर। एस्टर से हमारे पास क्या अराइज करता है? अराइज करता है स्पिंडल फाइबर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोटिक स्पिंडल। क्या बोलते हैं? माइटोटिक स्पिंडल बन गया यहाँ पे, ठीक है। माइटोटिक अपरेटस बना पूरा, बट वो सिर्फ माइटोटिक स्पिंडल अराइज किया। इज कंपोज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। यस, अभी मैंने बताया किसका बना? माइक्रोट्यूब्यूल्स का। इन प्लांट सेल द साइटोकाइनेसिस इज अकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। यस, अगर मैं प्लांट सेल की बात करती हूँ, अगर मेरे पास साइटोकाइनेसिस हो रहा है तो मेरे पास बीच में क्या बनता है? वेसिकल्स फ्यूज करके क्या बनाता है? सेल प्लेट, फिर वो बाहर की साइड एक्सटेंड करता है। सो व्हाट इज दैट नोन एज? साइटोकाइनेसिस, व्हिच इज करेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया between the daughter cells during cytokinesis is random and even. That means spread हो रहा है। मैंने क्या बताया था? एक पेरेंट है, अपने दो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी, तो इक्वल बनाएगा ना, कोशिश करेगा दोनों को इक्वल दे। तो सेम थिंग आउट हियर। तो ये जब दो डॉटर सेल्स में जा रहा है, रैंडम एंड इवन है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है यहाँ पर, ठीक है। सो विच इज ऑल्सो करेक्ट। बुक का लाइन है क्रोमेटिन कंडेंसेस टू फॉर्म डिस्क्रीट विजिबल, डिस्क्रीट मीन डिस्टिंक्ट, विजिबल क्रोमोसोम। यस, क्रोमेटिन कंडेंस करता है, डिस्क्रीट क्रोमोसोम बनाता है अर्ली इन द G1। पूरा राइट करके कहाँ पे गड़बड़ कर दिया? G1 में। कहाँ पर ये होता है? कंडेंसेशन अकर्स इन द सेल डिवीजन। प्रोफेज में बना रहा है, माइटाफेज में क्लियरली विजिबल है, बट ये कहाँ पे? ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, दैट मीन्स ड्यूरिंग द माइटोसिस। इट कैन नॉट अकर इन द G1। यहाँ पे तो क्या था? अभी मैंने बताया टैंगल्ड होते हैं, ये बाद में कंडेंसेशन करते, कॉम्पैक्शन करते, बट यहाँ पर G1 इज रॉन्ग, अदरवाइज एवरीथिंग इज करेक्ट। द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द डी ऑप्शन। 116 डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस 1। आपको मैंने सिखाया था माइटोसिस एंड मियोसिस 2 आर सिमिलर, क्योंकि माइटोसिस को भी इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं एंड मियोसिस 2 को भी इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। अब हमने पूछा मियोसिस 1, इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, क्रोमोसोम आर रिड्यूस्ड टू हाफ। इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, द क्रोमोसोम आर सेम आउट हियर। तो डिफरेंस देखते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम, जब भी मेरे पास वर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम आता है, वी नॉर्मली टॉक अबाउट व्हाट? मियोसिस। साइनेप्स ड्यूरिंग माइटोसिस, नॉट ड्यूरिंग मियोसिस। अभी मैंने आपको क्या बताया था? होमोलोगस वर्ड आने से क्लियर हो जाओ, वी आर टॉकिंग अबाउट मियोसिस। तो ये साइनेप्स करा मतलब पेयरिंग करा ड्यूरिंग माइटोसिस, रॉन्ग। यहाँ पे मैं मियोसिस लिखती है, नॉट माइटोसिस, तो वो करेक्ट होता। सो दिस इज रॉन्ग। DNA does not replicate in the interphase preceding meiosis,
but replicates in the mitosis. दोनों में इंटरफेस में एस फेज में हमारे पास डीएनए डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन होता ही है. इंटरकाइनेसिस बिटवीन विच इज बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में नहीं होता है. बट ये मेरे पास रॉन्ग लाइन हो गया. दोनों में इंटरफेस में डीएनए डुप्लीकेशन अकर्स. होमोलोगस क्रोमोसोम साइनेप्स ड्यूरिंग मियोसिस, नॉट ड्यूरिंग माइटोसिस. तो अभी तो मैंने आपको सिखाया इसका उल्टा है एंड दैट इज ट्रू. मियोसिस में करता है, साइनेप्स करता है, क्या बनाता है बाइवेलेंट, बाइवेलेंट बन के क्या दिखता है टेट्राड्स. तो ये राइट है. स्पिंडल कंपोज ऑफ माइक्रोट्यूबल्स आर नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग मियोसिस. स्पिंडल कंपोज ऑफ माइक्रोट्यूबल, स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनेंगे तो हमारे पास में सेंटर में नहीं आएगा. सेंटर में नहीं आएगा तो माइग्रेट भी नहीं करेगा. तो स्पिंडल फाइबर्स आर नेसेसरी आउट हियर. सो दिस इज रॉन्ग. द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन. 117. Identify the meiotic stage. Meiotic stage in which the homologous chromosome separate. अभी बताया था होमोलोगस क्रोमोसोम आ गया, दैट क्लियरली हैपेंस टू मियोसिस. अब देखते हैं सेपरेट हो गया, माइग्रेट हो गया. माइग्रेटरी फेज किसको बोलते हैं हम लोग? इट इज द एनाफेज स्टेज. ठीक है. while the sister chromatid remain associated at the centromere. अब देखो, अब मेरे पास आंसर तो एनाफेज है, बाकी को निकालती हूँ. मेटाफेज 1 गॉन, मेटाफेज 2 गॉन. अब इन दोनों में से चूज करना. एनाफेज तो आता था मुझको. अब मैंने आपको वर्ड बताया कि होमोलोगस क्रोमोसोम वर्ड किस में यूज करना है? मियोसिस में. तो ये भी तो मियोसिस है, बट ये किसकी कॉपी है? माइटोसिस की. तो ये तो आंसर होगा नहीं. इसके अंदर द आंसर इज एनाफेज 1. बट लेट्स अंडरस्टैंड दैट ये मेरे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, पेयर में है, 4 बन गया यहाँ पर. यहाँ से सेपरेशन होगा. 2 are going to go towards this and 2 are going to go towards this. तो homologous chromosome separate करो, या ऐसे 2 दिखा दो, कोई बात नहीं. You can show this and this moving there. ये दोनों एक साइड, ये दोनों एक साइड, तो homologous chromosome separate. तो मेरे पास में सेंट्रोमियर पे दोनों chromatids are attached. But in case of एनाफेज 2 और just the एनाफेज, हमारे पास क्या होता है? यहाँ पर हमारे पास ये क्रोमोसोम है. इस क्रोमोसोम में द सेंट्रोमियर डिवाइड्स. जब सेंट्रोमियर डिवाइड करता है तो हमारे पास क्रोमेटिड मूव्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स. Chromatid moves toward the opposite pole. That means division of हमारा sister chromatid separates out here. Sister chromatid, इन दोनों को sister chromatids बोलते हैं. They separate out here. आगे कौन जा रहा है? The centromere is towards the poles and the arms are trailing behind. If you remember the lines out here, the answer for this question happens to be the C option. Chromatin can be stained with, a basic question है, it can be stained with what? Basic dyes. ये तो line है, nothing special out here. But chromatin किस चीज का बना अगर मैं डालती क्वेश्चन? Chromatin is made up of DNA, RNA, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन. दैट मीन्स एसिडिक प्रोटीन भी. चारों का बना हुआ है ये. बट स्टेन किस है? क्रोमा कलर्ड बॉडीज है. तो ये जो है क्रोमोसोम कलर्ड बॉडीज, उससे क्रोमेटिन सही है. तो व्हाट इज स्टेन्ड विद द बेसिक डाइज. द आंसर फॉर 118 हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन. On what basis chromosomes have been divided into 4 classes? तो let's have a look for it. ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है, ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है, ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है, ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है. क्या दिखा रही हूँ? द 2 आर्म्स, ये दोनों आर्म्स है, क्रोमेटिड का आर्म्स है, सिमिलर है. किस बेसिस पे? बिकॉज ये सेंट्रोमियर जो है बीच में है. ये सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा, थोड़ा छोटा आर्म, थोड़ा बड़ा आर्म. This is metacentric. What is this known as? Metacentric. What is this known as? Submetacentric, slightly small arm. इसको क्या बोलते हैं हमारे पास? One short and one long arm. देखो छोटी आर्म से बड़ी आर्म. What is this known as? Acrocentric. और देखो इसमें अगर मेरे पास सेंट्रोमियर जो है एकदम कोने में चला गया, एंड में चला गया, what is this known as? Telocentric. ये सब किस बेसिस पे? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ दिस. किसका? ये सेंट्रोमियर का. और इस सेंट्रोमियर को और क्या हम लोग बोलते हैं? इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं. तो लेट्स गो फॉर द आंसर्स आउट हियर डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर. करेक्ट. पोजीशन ऑफ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, इसी सेंट्रोमियर को हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं. एंड नंबर ऑफ काइनेटोकोर्स नहीं बोल रहे हैं इसको. काइनेटोकोर क्या होते हैं? और डिस्क सराउंडिंग द सेंट्रोमियर, उससे कुछ लेना देना नहीं है. एंड द आंसर फॉर दिस इज व्हाट? बोथ ए एंड बी. देयरफॉर द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. 120.
which is not true for prokaryotic cell, not true for the prokaryotes. Pro primitive carrion nucleus, primitive nucleus वाला cells को, that means monorax के बारे में, they are smaller than the eukaryotic cell, yes, बहुत छोटे होते हैं. They lack membrane bound organelles, कुछ भी membrane bound नहीं है उनके पास में, no mitochondria, no plastid, no Golgi bodies, nothing. The genetic material is localized within the nucleoid. Yes, जो हमारे पास naked nucleus है उस एरिया को न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जहाँ पे DNA हमारे पास coiled है with the help of what? Proteins, which are basic proteins, polyamines, nucleoid. तो ये तीनों राइट हैं. They contain a well developed what? Cytoskeleton. Cytoskeleton means the cell का skeleton. What is that? Made up of proteins. हमारे पास proteins तीन टाइप का है, कौन कौन सा? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. ये फीचर किसका? यूकैरियोट्स का. नो प्रोकैरियोट इज गोइंग टू हैव दैट. देयरफॉर दिस इज नॉट ट्रू पूछा. दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी. Meiosis has a single cycle of DNA replication. Any cell which undergoes cell division, may be a meiotic करने वाला सेल या माइटोसिस करने वाला सेल, every cell undergoes DNA duplication only once. वो भी कब हो रहा है? इंटरफेस में. इंटरफेस में भी कब हो रहा है? एस फेज में. मियोसिस 1 और 2 के बीच में क्या होता है? इंटरकाइनेसिस. उसके अंदर DNA डुप्लीकेशन नहीं होता है. Has only single cycle of DNA duplication, correct. 2 cycles of DNA duplication, no. Interkinesis में नहीं है. 1 cycle of DNA replication in interkinesis, बता दिया इसमें होता ही नहीं है. 1 cycle of DNA replication after interkinesis, no. तो हमारे पास आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए. एनी सेल, मैंने आपको बोल दिया, कहीं पे भी कोई भी सेल कोई भी डिवीजन कर रहा है, ओनली वंस इट इज गोइंग टू अंडरगो DNA डुप्लीकेशन. 122. The events of recombination will occur between. Recombination कब होता है हमारे पास? जब हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होता है. क्रॉसिंग ओवर कब होता है? प्रोफेज 1 में ऑफ मियोसिस 1. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. अच्छा, ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है, पैटर्नल क्रोमोसोम. मेरे पास एक मैटरनल क्रोमोसोम है. ये पैटर्नल क्रोमोसोम के ये एक क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है. अब मेरे पास आ गया दूसरा, ये क्या है? मैटरनल क्रोमोसोम. एक क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड. एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल किसके बीच में हो रहा है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड. ये दोनों सिस्टर, ये दोनों सिस्टर आपस में नहीं करें. नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम. ऑल द क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं, सिस्टर सिस्टर में नहीं है. ओनली नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम करेक्ट है. कंप्लीट होमोलोगस क्रोमोसोम पूरा का पूरा कर रहा है? नो, मतलब ये तो करेगी नहीं. ऑल द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, नो. इट इज अकरिंग बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम. सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस. एंड कब हो रहा है? पेकाइटिन स्टेज में. कौन करवा रहा है? साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स. द आंसर इज बी. 123. एस्टर्स आर नॉट, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया मैंने, हमारे पास में सेंट्रियोल मूव्स टू द ऑपोजिट पोल्स. सेंट्रियोल से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलती है. वो सेंट्रियोल क्या बन जाता है? एस्टर. अब उस एस्टर से स्पिंडल फाइबर्स बनता है. अब वो क्या बन गया? माइटोटिक एपरेटस. ठीक है ना. चलो लेट्स टॉक अबाउट दैट. आर नॉट माइक्रोट्यूब्यूल, ये तो बना ही माइक्रोट्यूब्यूल से. व्हाट इज माइक्रोट्यूब्यूल? अ टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन. रेडिएट आउट फ्रॉम द सेंट्रोजोम. यस, सेंट्रोजोम और सेंट्रोल एक ही है. सेंट्रोजोम के अंदर में सेंट्रोल है, 2 सेंट्रोल है विद द साइटोप्लाज्म सराउंडिंग दैट. ठीक है. सो रेडिएट आउट फ्रॉम द सेंट्रोजोम, करेक्ट. प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द पोल, करेक्ट. Intermediate filament is a type of cytoskeleton, but it is not forming the ester. ये basically nuclear membrane के बाहर और cell membrane के अंदर में होता है. Keratin is one of that. तो ये इसका आंसर नहीं है. So this is it. But otherwise I hope you are aware, ester जब बन रहा है, एक और चीज, दोनों साइड बनता है. और किस में बनता है? In case of animal cells, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? एम्फी माने बोथ, एम्फीएस्ट्रल. सो किसकी सेल डिवीजन इज एम्फीएस्ट्रल? एनिमल सेल की. अगर मैं प्लांट सेल बोलूँ तो एस्ट्रल तो है ही नहीं, तो मेरे पास क्यों नहीं है? सेंट्रोसोम ही नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? एनेस्ट्रल. वेयर डू यू हैव एनेस्ट्रल? प्लांट सेल्स, बिकॉज नो सेंट्रोल और द सेंट्रोसोम. आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हैपेंस टू बी द डी ऑप्शन.
द सेल प्लेट इज लेड ड्यूरिंग, कब हमारे पास सेल प्लेट बनती है? सेल प्लेट मीन्स न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, अब सेल डिवीजन करेगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, उसको बोलते हैं क्या? साइटोकाइनेसिस। इज दिस मेटाफेज? नो, मेटाफेज में द कांग्रेशन अरेंजमेंट ऑफ दैट ऑन द प्लेन इन द सेंटर। इंटरफेस तो रेस्टिंग फेज, टीलोफेज तो अब मेरे पास खत्म होने वाला है। बट साइटोकाइनेसिस में सेल प्लेट बनता है, दैट मीन्स प्लांट सेल में अंदर से बनती सेल प्लेट, बाहर जा रही है साइटोकाइनेसिस के लिए, एनिमल सेल में बाहर से अंदर। तो आंसर फॉर दिस हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन। 125 टेट्राड ऑफ द सेल्स, घूमना नहीं, टेट्राड ऑफ द सेल्स। अभी मैंने टेट्राड बोला था, किसके लिए बोला था? क्रोमेटिड्स। अब मैं बोला टेट्राड ऑफ द सेल मतलब 4 सेल्स, ठीक है। टेट्राड ऑफ द सेल कब बनेगा? 4 डॉटर सेल्स कब बनता है? मियोसिस के रिजल्ट से। तो मेरे पास माइटोसिस चला गया, मेरे पास प्रोफेज 2 चला गया, मेरे पास मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 होना पड़ेगा। मियोसिस 1 के बाद में 2 डॉटर सेल बनते हैं, मियोसिस 2 मतलब पूरा हो गया, तो आई एम गोइंग टू हैव 4 डॉटर सेल्स आउट हियर। सो टेट्राड ऑफ द सेल, द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी मियोसिस 2, दैट इज द बी ऑप्शन। बट अगर डायड ऑफ द सेल्स आता तो मेरे पास आंसर होता मियोसिस 1। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन। 126 मियोसिस इज बेस्ट ऑब्जर्व्ड इन। अभी मैंने आपको दिखाया था कि मियोसिस जब होता है वो आगे क्या करेगा? रिडक्शनल डिवीजन। दैट मीन्स मियोसिस वही करेगा जो डिप्लॉयड सेल है। डिप्लॉयड सेल जो मियोसिस करता है उसको हम लोग एक और वर्ड बोलते हैं, मियोसाइट। तो अगर कल मैंने आपसे पूछा the egg is having 20 chromosomes, how many chromosome in its myocyte? तो 20 का डबल, that is 40 out here, तभी वो मियोसिस करके 20 बनाता है। फाइन, चलो लेट्स गो फॉर इट। कहाँ पर हो रहा है? तो हमको डिप्लॉयड देखना है। सेल्स ऑफ द लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम में है वो गर्थ इंक्रीज करा रहा है, तो गर्थ इंक्रीज इज प्योरली माइटोसिस, तो ये मेरे पास नहीं है। सेल्स ऑफ द एपिकल मेरिस्टम, वो भी टिप में है, माइटोटिक डिवीजन करा रहा है, लंबा करवा रहा है, दिस इज ऑल्सो नॉट अंडरगोइंग मियोसिस, है तो डिप्लॉयड ही है बट मियोसिस नहीं कर रहे। माइक्रोस्पोर मदर सेल, हम सब ने पढ़ा है, मदर सेल अंडरगोस मियोसिस टू फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर्स। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, ये सारे के सारे डिप्लॉयड है और मियोसिस करते हैं, विच इज करेक्ट। माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर तो बना ही फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर इज हेप्लॉयड, तो ये तो कर ही नहीं सकता। एंथर वॉल डिप्लॉयड है, इसके अंदर स्पोरोजेनस सेल सब बनता है, वो करता है, बट यहाँ से मेरे पास रॉन्ग आ गया। सो दैट मीन्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हैपेंस टू बी द ऑप्शन नंबर सी। इसको हम मियोसाइट भी बोल सकते हैं। इफ आई से द माइक्रोस्पोर इज हैविंग 10 क्रोमोसोम, इसका माइक्रोस्पोर मदर सेल कितना है? तो 20 ऑब्वियसली, एंड इट इज ऑल्सो नोन टू बी अ मियोसाइट। 127 protein synthesis for the preparation of mitosis takes place in which of the given stages of interphase? Interphase is divided into कितना? G1, S, G2. Cytoplasmic growth is continuous, पढ़ा हमने। Protein synthesis, transcription सब occurs out here, पढ़ा हमने। Maximum organelle duplication occurs in यहाँ पर, and one of the organelle duplicates कहाँ पर? यहाँ पे centriole. Where do you have DNA duplication? यहाँ पर। बट फोकस अभी मेरा कहाँ पर है? प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें भी प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, बट बेसिकली इसके प्रिपरेशन के लिए। इसमें प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है किसके लिए? द नेक्स्ट फेज। व्हाट इज द नेक्स्ट फेज? एम फेज। दैट मींस सेल डिवीजन के लिए जो मुझे प्रोटीन चाहिए, जो मेरे पास माइक्रोट्यूब्यूल सब कुछ बनना है, जो वो कहाँ बनेगा? मेरे पास G2 में। प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस, तो मेरे पास क्या है? कहाँ बन रहा है? G2 में। द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द G2 फेज, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। एनसीईआरटी का लाइन है ये, ध्यान से पढ़ो, पेज के एंड में लिखा हुआ है, ठीक है। 128 द फॉलोइंग वैक्यूल इज प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सबसे पहले इज वैक्यूल प्रेजेंट इन द मोनेरास और द प्रोकैरियोट्स? नो, बिकॉज वैक्यूल्स आर सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल मेरे पास जनरली किस में होता है? प्रोटिस्ट में। प्रोटिस्ट में क्या होता है? ये जब फूड को एनगल्फ करता है, अंदर लेता है, तो फूड वैक्यूल्स बनता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहाँ पे है? ऑस्मो रेगुलेशन करता है, जैसे अमीबा सब में। सैप वैक्यूल में मतलब क्या है? प्लांट्स में होता है, वाटर प्लस मिनरल्स। ये तीनों जो वैक्यूल्स हैं ये यूकैरियोट का पार्ट है।
or gas vacuole is cell inclusion which is not having a membrane for that, it is non membranous, कोई सराउंडिंग नहीं है, एंड ये किसमें बॉयंसी देता है, बैक्टीरियाज में, तो दिस इज नॉट द रियल वैक्यूल, इसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, और ये कहाँ पर है, ओनली फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज, मतलब किस किस में है, ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल बैक्टीरिया जिसको हम पर्पल सल्फर बोलते, बुक में लिखा पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया, अगेन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, तीनों में प्रेजेंट है, विच आर व्हाट, photosynthetic bacteria. So answer for that happens to be the B option. 129. Cell is the fundamental structure and functional unit of all the living organisms because हमने पढ़ लिया है सेल से छोटा कुछ भी होने से कौन है, सबसे छोटा कौन है, मैक्रोमोलिक्यूल्स. कैन दे शो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, नो. उससे छोटा, उससे थोड़ा बड़ा, मतलब सेल से छोटा और कौन है, ऑर्गेनल्स. कैन दे शो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, नो. तो एनीथिंग लेस देन अ सेल कैन नॉट शो एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, हेंस सेल इज नोन एज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, विच मेक्स द आंसर फॉर दिस. बट आगे बढ़ते. द मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन अकर ओनली इनसाइड अ लिविंग सेल. मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन अकर इन विट्रो, फर्स्ट चैप्टर में था, डिलीटेड हो गया, पर होती है. न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंस सेल एंश्योर्स लिविंग स्टेट. न्यूक्लिक एसिड मेक्स इट लिविंग, बट वायरसेस में न्यूक्लिक एसिड होती है, क्या वो अकेला लिविंग हो सकता है, नहीं, इट रिक्वायर्स अ होस्ट फॉर इट, सो दैट अगेन इज नॉट द राइट आंसर. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कॉजेस डिफरेंशिएशन फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, ऑब्वियसली वो चाहिए मेरे पास, बट यहाँ पर क्या आंसर है, इसका आंसर इज ए ऑप्शन. इससे नीचे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, सो दैट मेक्स इट राइट. द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन. 130. Prokaryotic mesosomes. I hope you understand the word. This is the cell wall. इसके अंदर mesosomes जो है, what are these mesosomes? Infoldings, invaginations of this. ये क्या करा रहा है, surface area increase करवा रहा है. What does it does not help in? क्या ये मेरे पास सेल वॉल फॉर्मेशन कराता है? Yes, यहाँ पे मेरे पास सेल वॉल फॉर्मेशन सेंट्रल मेसोसोम से होता है. डीएनए रेप्लिकेशन, yes. रेस्पिरेशन, यस, इसको मेसोसोम्स ही बोलते हैं, दैट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन बिकॉज इट्स हैविंग द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स. फोटोसिंथेसिस ये नहीं करता है, इट्स नॉट हेल्पिंग इन फोटोसिंथेसिस. द आंसर फॉर दिस हैपेंस टू बी द डी ऑप्शन. बट मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ फिर से बनती है जिसके अंदर पिगमेंट होता है, उसको हम क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं. तो मेसोसोम्स आर नॉट हेल्पिंग इट. अगर मेरे पास आए कौन हेल्प कर रहा है फोटोसिंथेसिस में, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, सो दैट इज व्हाट, क्रोमैटोफोर्स फॉर इट. 131. Which of the following stages of meiosis involves in the division of centromere? थोड़ी देर पहले सिखाया था, जब सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है, कौन ऑपोजिट पोल्स में जाता है, क्रोमेटिड्स. So when you have that, it is seen in case of anaphase. But 1 or 2, anaphase 2. अगर anaphase 2 आंसर है तो anaphase of mitosis भी आंसर होगा. तो let's talk about that. टिलोफेस रॉन्ग, मेटाफेस रॉन्ग, मेटाफेस रॉन्ग, तो बचा मेरे पास एनाफेस 2. बट अगर मैंने एनाफेस 1 भी लिखा होता तो रॉन्ग, एनाफेस 2 और एनाफेस भी लिखा होता तो बोथ ऑफ दिस. दैट मीन्स ये तो मियोसिस 2 का पार्ट है और एनाफेस होता तो माइटोसिस का पार्ट है. क्रोमेटिड मूव्स, और क्या बताया था आगे, कौन मूविंग अहेड, कौन है लीडिंग, कौन है लीडिंग इज द, कौन है, सेंट्रोमियर. ट्रेलिंग बिहाइंड आर द आर्म्स फॉर इट. द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन. 132. The motile bacteria are able to move by. हम जब भी मोटिलिटी बोलते हैं लैंग्वेज में, बोलने में हमेशा फ्लैजिला सिलिया निकलता है, बट बैक्टीरियाज लैक सिलिया. इट्स मोटाइल विद द हेल्प ऑफ व्हाट, द फ्लैजिला. द फ्लैजिला हेल्प्स इन मूविंग ऑफ इट. बट what is pili? Pili is what? Pili, whatever you pronounce. Tubular outgrowths. What is fimbri? Bristle-like outgrowths. दोनों क्या कर रहे हैं? Helping in attachment. किसको attachment? ये तो rock सब में help करता है, water में, streams में, और ये कहाँ करता है? With the host, with its own partner. तो दोनों किस में करे? Attachment, but not in motility. The answer for 132 happens to be the B option. 133. In eubacteria, एक बार नीट का क्वेश्चन है, what is U? True bacteria. A cellular component that resemble eukaryotic cell. ऐसा क्या है प्रोकैरियोट्स में जो बैक्टीरियास में जो यूकैरियोटिक सेल के जैसा है? Is this a nucleus? No. इसके अंदर इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड. और इसके पास वेल डेवलप्ड है ही नहीं. राइबोसोम्स, नो.
इन केस ऑफ बैक्टीरिया 70S राइबोसोम्स होता है, यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम्स होता है, रॉन्ग। सेल वॉल बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन का होता है, हमारे पास सेल्यूलोज पेक्टिन अलग अलग में है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ किसका, प्रोटीन्स एंड द लिपिड्स, तो विच रिजेंबल्स दैट इज द आंसर इज द डी ऑप्शन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन। आई होप कंफ्यूजन नहीं हुआ, डोंट टेल मी कि मैडम राइबोसोम लिख कर आगे, नहीं गलती करनी है। लेट्स प्रोसीड। 134 गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल इन, चलिए देखते हैं, इन ट्रैपिंग द लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी। ये किसका रोल है, दिस इज अ रोल प्लेड बाय द क्लोरोप्लास्ट, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी बनाता है, कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट, तो ये तो रॉन्ग है। इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड द कार्बोहाइड्रेट्स, कौन करता है डाइजेशन ऑफ दिस, ये करता है हमारे पास लाइसोसोम्स। इसके पास क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं हमारे पास जो तोड़ता है इन सबको। एज एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनल्स, कौन ऐसा जो एनर्जी बनाता है, एनर्जी बनाने को क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन। कौन सा ऑर्गेनल्स मेरे पास फॉस्फोराइलेशन कर सकता है, फॉस्फोराइलेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। कहाँ कहाँ हमने पढ़ा है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एटीपी बनाता है, कहाँ पढ़ा हमने, दो जगह पे, फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये दोनों करते हैं, और कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये भी रॉन्ग है। इन पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन, तो थोड़ा सा घुमा दिया आपको, ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोसिडेशन ऑफ लिपिड्स, आप सबको पता है प्रोटीन बन चुका है, दैट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो चुका है, उसको मॉडिफाई करता है ये, उसको पैकेज करता है ये, कौन करता है, गोल्गी बॉडीज, दैट मीन्स राइबोसोम्स जो है, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो टाइप का है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसने बनाया लिपिड्स, इसने बनाया प्रोटीन्स, वो हो चुका है, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन हो चुका है, अब उसको मॉडिफाई करके इस प्रोटीन को क्या बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन, इसको क्या बनाता है, ग्लाइकोलिपिड्स, कौन करता है, गोल्गी एपरेटस। देयरफॉर द आंसर फॉर दिस हैपेंस टू बी द डी ऑप्शन। 35 सिस एंड ट्रांस फेसेस ऑफ इट, अगर आपको पता ये न्यूक्लियस है, ये मेरे पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेरी क्लोज टू दैट हमारे पास होती गोल्गी बॉडीज। कैसे है, मेरे पास में दो फेजेस हैं यहाँ पर, ये मेरे पास एक गोल्गी बॉडी है, आप देखो इसको, इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टर्नी, क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। एक पोर्शन ऑफ दिस इज टुवर्ड्स दिस न्यूक्लियस, यहाँ से मैं यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसने बनाया वेसिकल्स, ये आया इसके अंदर, तो जो इसकी साइड है उसको हम बोलते सिस, उसको हम लोग बोलते फॉर्मिंग, उसको हम लोग बोलते कॉन्वेक्स। ऑन द अदर हैंड जो इस साइड है जो बन के निकला उसको ऑपोजिट ऑफ दैट, ट्रांसफॉर्मिंग का ऑपोजिट मैच्योर्ड या मैच्योरिंग, कॉन्वेक्स का ऑपोजिट कॉन्केव। लुक एट दिस, दिस इज कॉन्केव। अब देखते हैं ये जो सिस्टर्नी है मेरे पास में, फेसेस है मेरे पास में, दिस आर सिमिलर, दिस आर नॉट सिमिलर, अलग अलग है, तो सिमिलर रॉन्ग, entirely different, yes entirely different. Are they interconnected, not interconnected, but देखो मैंने बनाया interconnected, so this is right, these are different from each other। एक convex है, concave है, form कर रहा है, ये mature कर रहा है, तो obviously different है, but connected तो है, एक से एक उसको दे रहा है यहाँ पर। The answer for this question happens to be 135 का C option। Section B 136, select the correct statement from the following regarding the cell membrane। चलिए, sodium and potassium ions move across the cell membrane, yes, by passive transport, no, by active transport। ठीक है, अगर आपको याद है ये एक्टिव है, वेरी फाइन, अगर भूल भी गए तो अगर आपको याद है सोडियम एंड पोटेशियम पंप, अगर आई यूज द वर्ड पंप आउट हियर, दैट पंप स्टैंड फॉर व्हाट, एक्टिव। एक्टिव मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एक्टिव मतलब कैरियर भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। Proteins make 60 to 70% of the cell membrane of erythrocyte, मतलब RBC. No, the data says that the protein are 52% out here and the lipids are 40% out here in the erythrocytes. So this is a wrong statement. Lipids are arranged in bilayer with the polar heads towards the inner part. अगर आपको याद है लिपिड्स का दो पार्ट है, ऐसे हेड है, ये टेल है, दिस द हेड है, ये टेल है, ये जो हेड है दोनों क्या है, पोलर एंड्स, तो पोलर एंड्स आर टुवर्ड्स आउटसाइड, इसने लिखा इनर पार्ट।
ओके, सो द पोलर पोर्शन कहाँ पर है, बाहर की साइड, पोलर पोर्शन. Fluid mosaic model of the cell membrane was proposed by, the accepted model is fluid mosaic model given by whom, Singer and Nicholson, if I am not wrong 1972. तो year भी देख लेना, and answer for the question happens to be the D option. If a cell's generation time is 1 minute, generation means double हो रहा है यहाँ पर. In 20 minutes a culture medium is 1/8 filled with cells, then the tube will be filled. When will be the tube filled? चलो देखते हैं. If I go for saying 1/8, इसका डबल कितना होता है 1/4, इसका डबल कितना होता है 1/2, इसका डबल कितना फुल, हाँ फुल. अगर मेरे पास 1/8 कितने मिनट्स में बना 20, और जनरेशन टाइम इसका कितना है 1 मिनट, तो 21 मिनट्स में ये डबल हो जाएगा. इसका कितना हो गया 1/4, फिर 1/4 का डबल कितना है 1/2, तो कितना बन गया 22 में. उसका डबल कितना है 23. Therefore, the answer for the question happens to be 23 minutes. If you want to go for it, ऐसे भी देख लो, ये एक है, यहाँ पे ऐसा है, go for it. 1/8 इतना फिलअप था, इतना करने में मेरे को कितना टाइम लगा 20 मिनट्स. इसको पूरा करना है, मतलब मुझे 1/4 बनाना है, तो आप देखो 1/4 कर दो उसको, फिर उससे डबल करो and so on. So that means the answer for this happens to be 23 minutes. That is a B option. 138. If the DNA content of the onion root tip is DNA content is always symbolized by C. 2C कब है, end of the M phase. M phase के end में खत्म हो गया है M phase, ठीक है, तब इतना. What would be the DNA content at the end of S phase? तो चलो देखो एक बार, ये मेरे पास साइकिल है, ये मेरे पास ऐसा है, this is G1S G2M. That means मेरे पास M बन गया, that means originally भी 2C था. 2C एंटर किया G1 में, यहाँ पे कोई डीएनए डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है 2C. S में डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा है, बट वी आर नॉट वेरी श्योर कि शुरू में हो गया कि नहीं. बाय द एंड ऑफ इट, दैट मीन्स जब तक वो G2 में पहुंचा तो डुप्लीकेशन हो ही गया है, दैट मीन्स 4C बन गया है. इफ आई एम आस्क्ड अबाउट एंड ऑफ S फेज, तो भी मेरे पास कितना हो गया 4C, और G2 पूछा तो 4C हो ही चुका है. अब मेरे पास पूछा यहाँ पर, बट माइटोसिस में क्या हो गया, फिर से 2C हो गया. एंड द आंसर फॉर द क्वेश्चन इज, हमने पूछा would be the DNA content at the end of S phase. The answer is S phase में पूछने से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट कोई पूछता ही नहीं है वहाँ पे एंड ऑफ S या G2 पूछेगा, तो दैट इज व्हाट 4C. एंड माइटोसिस में बराबर कर देता है, तो अगेन 2C आउट हियर. द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द D ऑप्शन. साइटोकाइनेसिस माने सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स टेक्स प्लेस बाय, देखो कहाँ से, अगर मेरे पास ये एनिमल सेल है, ये मेरे पास 2 न्यूक्लियस है, मेरे पास सेल मेम्ब्रेन जो है इट इज़ नॉट रिजिड एज द सेल वॉल, तो यहाँ से मेरे पास फरो बनेगा, इन्वेजिनेशन बनेगा, जो अंदर 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 दोनों साइड से एक्सटेंड करके बना देगा. जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, रूम है, अगर मुझे सेल मेम्ब्रेन तो बाहर से अंदर आके 2 में बनाऊंगी, तो व्हाट इज दिस नोन एज, अंदर में आना फरोइंग बोलते हैं, बाहर ओल्डर मैंने पहले बना फिर अंदर, उसको बोलते हैं सेंट्रिपिटल. तो मेरे पास में ये तो फॉरोइंग राइट था, ये मेरे पास रॉन्ग हो गया, तो ये क्या है सेंट्रिपिटल. और सेल प्लेट तो रॉन्ग हो ही गया है, तो आंसर तो ये होना चाहिए. फिर भी हम आगे देखते हैं. वेल द प्लांट सेल में क्या बनता है, प्लांट्स सेल प्लेट कौन बनाता है, गोल्गी बॉडीज वेसिकल्स बनाते हैं, वो वेसिकल फ्यूज करके सेल प्लेट बनाते हैं, विच एक्सटेंड्स टुवर्ड द पेरिफेरी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल. और ये जो बना है सेल वॉल का क्या बना है, मिडिल लेमेला, रिच इन व्हाट, कैल्शियम एंड पेक्टिन. द आंसर फॉर दिस हैपेंस टू बी बी ऑप्शन. फिर से बोल रही हूँ, सेल प्लेट जो बनी सेंटर में बनी, क्यों सेंटर में बनी, बिकॉज द सेल वॉल इज व्हाट रिजिड, तो वो फरोइंग नहीं कर सकता. ठीक है. 140 साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. सबसे पहले साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता क्या है, जब हमारे पास बाइवेलेंट फॉर्मेशन है, जब हमारे पास पेयरिंग है, क्रॉसिंग ओवर करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, तो किसने उसको पास में करवाया, पेयरिंग किसने कराया, साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. अब ये साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स विजिबल कहाँ पे है, जस्ट लुक एट द वर्ड्स माइक्रोस्कोप्स. आई होप सबको पता है, ये जो लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड, सिंपल, ये सब है मैग्निफिकेशन के बेसिस पे है. तो यहाँ पे हमको हायर मैग्निफिकेशन चाहिए, इट इज हायर मैग्निफिकेशन पे चाहिए, तो दैट मीन्स कौन सा आंसर है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप.
तो आंसर फॉर 140 हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन। हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप भी एक ऑप्शन में लिखा हुआ है, कहाँ पर, जब हमारे पास कंपैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स हो रहे हैं ड्यूरिंग द लेप्टोटिन स्टेज और जाइगोटिन में जब जा रहा है, पर लेप्टोटिन स्टेज में कंपैक्शन इज सीन अंडर व्हाट, लाइट माइक्रोस्कोप। बट इस क्वेश्चन का आंसर इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। 141 which is present in the matrix of the mitochondria. Mitochondria is known as semi autonomous organelle. That means अपना कुछ कुछ काम खुद से कर सकता है। अपना काम करने के लिए उसके पास में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सब कुछ होना पड़ेगा। तो इज दिस हैविंग व्हाट, आरएनए? यस। इज दिस हैविंग डीएनए? यस। प्रोटीन भी मैंने बोला, प्रोटीन के लिए क्या चाहिए, फैक्ट्री चाहिए। फैक्ट्री का नाम क्या, राइबोसोम। सो इट इज हैविंग ऑल ऑफ दिस, बट बाई चांस अगर आया कौन सा राइबोसोम, इट हैपेंस टू बी 70S। दैट मीन्स 70S जो कि प्रोकैरियोट का राइबोसोम है वो हमारे पास सेल ऑर्गेनल्स में भी है। ओके, तो आंसर इज डी ऑप्शन। और कौन सा ऑर्गेनल सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, द क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो या प्लास्टिड ऑल्सो। 142 the fruit flies Drosophila have diploid number of chromosome, कितना है, 8। how many chromosome will be there in the tetrad of the cell? पहले बात tetrad cell में 4 सेल बनेंगे। obviously meiosis results in 4 daughter cells। अब 4 सेल डॉटर सेल्स है, मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर आर रिड्यूस टू हाफ। तो हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ इट, 4 4 4 4। तो हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर, 4। तो ये हमारे पास 4 आ गया, हैप्लॉइड हो गया। द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन। ठीक है। हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन द सेल एनवेलप ऑफ द प्रोकैरियोट्स? The cell envelope is having 3 parts tightly bound to each other. What are the 3 parts out here? Glycocalyx, cell wall and the cell membrane. थोड़ा सा याद रखना, these are tightly bound to each other. And ये तीनों parts हैं यहाँ पे, glycocalyx may be present, may not be present. क्या बनाता है, कैप्सूल बनाता है, और क्या बनाता है हमारे पास में, और the slimy layer। ठीक है, थिक वाला कैप्सूल और थिन वाला जो स्लाइमी है वो स्लाइमी लेयर है। द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन। 144 मैच द फॉलोइंग, सेलेक्ट द करेक्ट। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल किसका पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट, इट्स अ पार्ट ऑफ द एनिमल सेल, प्लांट सेल लैक इट, बट एक लाइन लिखा है, जो प्लांट सेल के पास में एक फ्लैजेला है, it is similar to the basal body. The basal body is similar to the centriole out here. Let's go for it. Match करूँगी, the basal body, the cilia or the flagella is the centriole, resembling that. तो क्या है इसके अंदर में मेरे पास organization 9+0, ठीक है, right. तो A का 4. क्लोरोफिल, क्लोरोफिल आने से मेरे पास में क्लोरोप्लास्ट होना पड़ेगा, प्लास्टिड होना पड़ेगा, थैलाकॉइड, ग्राना होना पड़ेगा। लेट्स गो फॉर इट। तो क्या बचता मेरे पास, थैलाकॉइड, सो दिस इज 2। क्रिस्टी, क्रिस्टी किसको बोलते हैं, ये मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, आउटर लेयर है, ये मेरे पास इनर मेम्ब्रेन को है, फोल्डिंग्स होता है, इसको क्रिस्टी बोलते हैं। तो इन फोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया 1। आरएनए, आरएनए इज व्हाट, अ न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, सो दिस इज व्हाट 3। 4 2 1 3, 4 2 1 3। I hope you are clear with that. The answer for the question happens to be the A option. 145 the statement omnicellula e cellula, cell, फिर से cell, that means cell arises from the existing cell. The man who proposed the modern cell theory, I hope आप सबको पता है, the original cell theory was proposed by Schwann and Sheldon, the 2 scientists जो botanists and zoologists थे, उन्होंने प्रपोज किया था, विच इज नॉट अ कंप्लीट सेल थ्योरी। तो किसने ऐड कर दिया हमारे पास, रुडोल्फ वर्च्यू ने ऐड कर दिया, साइंटिस्ट का नाम नहीं लिखा है। उस पर्सन ने बताया था कि सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो मॉडर्न सेल थ्योरी इसने दे दिया। He gave the final shape to the cell theory, लाइन है NCERT की। Man who modified the cell theory explaining that the new cells are formed from the pre-existing cell, the meaning of this. But when you go for the question answers from the NCERT, वहाँ पे question लिखा है de novo. De novo means the new. The cells do not arise de novo. नया नहीं बनता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। अगर ये वर्ड नेक्स्ट पेपर में de novo लिख दूँ, so that means which is not true. Does not arise आया तो करेक्ट है। That means all of these are correct. The answer for the question happens to be the D option. 146
The most dramatic period of the cell cycle involves, सबसे पहले most dramatic period है कौन, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में बताया था, M phase, involves major reorganization of virtually all the components of the cell. Yes, कोई पहले इधर गया, कभी वापस आया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गया, गोल्गी बॉडीज गया, वापस आ गया, तो what is this? सब कुछ ड्रामा हो रहा है. It represents the phase where the actual cell division occurs. Yes, इससे पहले मेरे पास क्या था, G1S, G2, जो कि सेल साइकिल का पार्ट है पर सेल डिवीजन का पार्ट नहीं है, सो दैट वी आर नॉट गोइंग टू हैव द एक्चुअल सेल डिवीजन. तो मेरे पास कहाँ हो रहा है, एम फेज में. द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन. जी नॉट में तो एग्जिट करता है, एस में तो डीएनए डुप्लीकेशन, G2 में तो अभी बताया प्रोटीन सिंथेसिस, सब कुछ हो रहा है. 147, विच आर फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द क्रोमोसोम. क्रोमोसोम क्या है, कलर्ड बॉडीज. जोम मतलब बॉडी, क्रोमा मींस कलर्ड. किस चीज का बना है, ऑब्वियसली न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन. कौन कौन सा न्यूक्लिक एसिड, मेजर पार्ट इज डीएनए, थोड़ा सा आरएनए. प्रोटीन कौन है, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स. करेक्ट. 23 पेयर्स इन सिंगल ह्यूमन डिप्लॉयड सेल. यस, हमारे अंदर ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में 23 पेयर्स है, विच इज करेक्ट. Contains what, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. यस, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है. सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन किसी किसी में होता है, जिसके अंदर में क्या बनता है हमारे पास, सैटेलाइट क्रोमोसोम. 5 है वो. एंड ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट. यस, ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट. तो ऑप्शन डी इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और क्या बोला था हमने, सेंट्रोमियर. If at the end of mitosis a cell has 12 chromosome, mitosis हो गया तब मेरे पास में 12 chromosome. Mitosis generally occurs in diploid cells in animals. Plants में haploid diploid दोनों में होते हैं. क्यों? Because it undergoes alternation of generation. तो चलो let's go for it. Then how many chromosome will be present in the S phase of it? हम सब ने पढ़ लिया है, क्रोमोसोम नंबर मेरे पास में डबल नहीं होते हैं. माइटोसिस करने वाला सेल जितना क्रोमोसोम उसके पास पहले है उतना ही क्रोमोसोम बाद में होता है. तो क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं है. द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी ए ऑप्शन. ठीक है, चलिए लुक एट दिस डायग्राम आउट हियर. लेट्स गो फॉर द लेबलिंग ऑफ इट. सबसे पहले इसको देखो, ये हमको पता है यहाँ से, इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, ये मेरे पास सेंट्रियोल है. पहले इसको देख लेते हैं. तो बी वाला ऑप्शन सेंट्रियोल, तो बी वाला ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो 2 को तो काट दो. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट. जब मेरे पास ऐसे करके बना है, ऑब्वियसली 4 वाला क्या है, क्रोमोसोम. तो 4 इज क्रोमोसोम करेक्ट, 4 इज क्रोमेटिड, ये रॉन्ग. तो इनमें से भी आंसर मेरे पास ऐसे हो गया. फिर भी आगे देखते हैं. ये जो पोर्शन एक को पूछा व्हाट इज दिस, क्रोमेटिड, और ये वाला पोर्शन यहाँ पे पूछ रहा है इसको व्हाट इज दिस, नोन एज द सेंट्रोमियर आउट हियर. सो 1 इज क्रोमेटिड, एक को क्रोमेटिड, 2 इज सेंट्रियोल, 3 is centromere, 4 is chromosome. The answer for the question happens to be the A option. I hope कोई confusion नहीं है यहाँ पर. बाकी तो आपको सीधा इससे देख लीजिए 2 से, तो आपको समझ में आ जाता है. 150. Which of the following is true about mitochondria? It is a semi-autonomous organelle. Yes, बता दिया क्यों, बहुत काम अपने आप करता है. Compartmentalization is present. Let's talk about that. ये मेरे पास में माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है. ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या, एक्वेस है. यहाँ पे मेरे पास बन गया दिस मेम्ब्रेन. व्हाट इज दिस मेम्ब्रेन नोन एज, दिस इज नोन एज द इनर मेम्ब्रेन फॉर दिस. इट डिवाइड्स दिस इनटू 2 कंपार्टमेंट्स. एक्वेस पोर्शन को 2 कंपार्टमेंट में, ये जो स्पेस है और ये जो है मैट्रिक्स है. यस, यहाँ पे मेरे पास में कंपार्टमेंटाइजेशन प्रेजेंट है. मैट्रिक्स कंटेन 80s राइबोसोम. नो, इसके अंदर राइबोसोम होता है, बट व्हाट इज दिस, 70s राइबोसोम. द आंसर फॉर दिस इज A and B is correct. Therefore the option number D is correct. The answer for 150 happens to be the D option. So here we come to the end of the solution of this paper. I hope आप सब अपना improvement कर रहे हैं. Keep working hard. All the best. Thank you.